Sairam classes English 1 to 3. Today we are going to read chapter 4, The Rat Trap, class 12th CBSE book Flamingo. But before starting the chapter, please like and subscribe the channel for new update and hit the bell icon also, by which you can get the latest notification as I upload my videos. So start the chapter now. Before starting the chapter, I will tell you something about the writer of this chapter, Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. This story is set in the middle of the mines of Sweden, which are rich in iron ore. This story is narrated in the manner of a fairy tale. It gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others. So, start the chapter now. Now, we will start the chapter. Introduction. The rat trap conveys a universal message. The author believes that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. The act of kindness and hospitality shown by the Iron Master's daughter awakes basic human goodness in the peddler. The story also highlights that this world is a big rat trap. Riches and wealth only tempt and trap us in. In this chapter, the writer is conveying us a very beautiful message. What is the message here? The message is that if we will do good behavior with anyone, we can change his her or personality. It is same happened in the story. The act of kindness and hospitality which is shown by the Iron Master's daughter, it changed the peddler's behavior. His you can say that his habit of stealing, and he changed into a good person. The story also highlight that this world is a big rat trap. क्या कहना चाहती है स्टोरी? स्टोरी टेल्स अस दैट जो ये जो वर्ल्ड है इट इज़ लाइक अ बिग रैट ट्रैप एंड एज वी सेट बेट्स मीन्स something to attract the mouse in for the trap. Whatever we kept, a piece of bread, a piece of biscuit, a piece of chapati, anything which we set in the trap to attract the mouse, that is called bait. In the same way, the world is full of pleasers. And these pleasers attract us to the world, and these are like the बेट्स. ये भी उसी तरह से बेट्स की तरह से ही हैं. जैसे हम चूहों के लिए बेट्स तैयार करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप में फंसाने के लिए. तो जितनी भी रिचेस या वेल्थ है, धन दौलत है, जितने भी ऐशो आराम हैं, ये भी वर्ल्ड में हमें अट्रैक्ट करते हैं और हमें लालची बनाते हैं, और इस तरह से हम वर्ल्ड में के उसमें जाल में फंसते चले जाते हैं. Seller of rat traps. Once upon a time there was a man who went selling small rat traps of wire. He made them himself. The business was not profitable, so he had to resort to both bagging and petty thefts. His clothes were in rags. His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. His life was sad and monotonous. So in this story we will see that there was a person who sells rat traps, and and which type of rat trap he sells? He doesn't buy from anywhere. He made those rat traps. And ये जो चीज़ें वो बनाता है rat traps, वो कहाँ से बनाता है? He doesn't have enough money to buy all these things. Whatever he got in the bagging, then he used to make the rat trap from that. जितनी भी चीज़ें उसे बैगिंग में मिलती थी, उन सब चीज़ों को वो जो है उन सब चीज़ों से
वो रेड ट्रैप बनाया करता था। एंड ऑल्दो दैट बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, फिर भी ये जो बिजनेस था वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेफ्ट, इसलिए उसको क्या करना पड़ता था, ही हैड टू डू सम पेटी थेफ्ट, मतलब स्मॉल थेफ्ट, स्मॉल काइंड ऑफ स्टीलिंग एंड बेगिंग ऑल्सो। कभी वो मांगता था, कभी वो चोरी करता था। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, एंड जो उसके कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा फटे हुए थे। हिज चिक्स वर sunk in एंड हंगर gleamed इन हिज आइज, जो उसके गाल थे वो बिल्कुल धंसे हुए थे अंदर, और शक्ल देख के ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई भूखा, बहुत दिन से किसी व्यक्ति ने ढंग से खाना ना खाया हो। एंड इन दिस वे some kind of stealing, some kind of bagging, he was just surviving, और एंड हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस, उसकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस थी। और ये जो जितना भी उसने चोरी वोरी करके जो जैसे भी वो अपनी ज़िंदगी चला था, इस चीज़ के लिए एक आपकी बुक में बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा इडियम यूज़ हुआ है, एंड दैट इज़ कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो वी कैन से बाय बैगिंग एंड बाय स्टीलिंग ही वॉज कीपिंग हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। Now, what is the next heading? The whole world a rat trap. अब ये कहाँ से आया कि whole world a rat trap? ये पूरा जितना भी वर्ल्ड है एक rat trap की तरह से है। तो as we know that the person was not having any family, he was alone and he was not having any house also. तो whenever he was नथिंग टू डू, ही जस्ट डू टाइम पास। और उस टाइम पास के लिए वो क्या करता था, उसका फेवरेट टाइम पास क्या हुआ करता था कि वो वर्ल्ड के बारे में, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता था। सो ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और क्या आइडिया आता था उसको सोचते सोचते कि जो वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है, इट वॉज लाइक अ बिग रैट ट्रैप, बहुत बड़ा सा ये रैट ट्रैप है। इट्स ओनली पर्पज वॉज टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। और इसका मकसद क्या है कि जैसे हम चूहों के लिए कोई भी बेट्स तैयार करते हैं, बेट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो देख करके अट्रैक्ट हों ट्रैप में आने के लिए। तो सेम यही जो वर्ड है ये भी हमारे लिए हमारे लिए बेट्स तैयार करता है। रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, ऑल दीज आर टेम्पटिंग बेट्स। ये क्या सब है, एक तरह से हमारे लिए अट्रैक्ट करने वाली बेट्स हैं। And anyone who lets himself tempted by these baits, the rat trap close in on him. और जैसे ही जो as we see many times as the mouse attract by these baits and enter the trap, it just close, the lid is closed, the cover of that trap is closed. In the same way as we attract these baits, जो भी शेल्टर है आपका, क्लोथिंग है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेज़र लाइफ है, लग्जरीज हैं, जितना भी कंफर्ट जोन है हमारा, जैसे जैसे हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वी ऑल्सो ट्रैप इन दैट ट्रैप, हम भी उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। एंड नेवर बीन काइंड टू दैट ट्रैप क्लोज इन एंड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, इट गिव हम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। और इससे जो है ये जो वर्ड थी, वर्ड ने भी मतलब पैडलर के लिए कोई भी काइंड नहीं था। उस वर्ल्ड में क्या था, सब लोग उसे बहुत गंदे तरीके से देखते थे। नोबडी डिड गुड टाइप ऑफ बिहेवियर विद हिम, कोई उसको उससे बात करने को तैयार नहीं होता था, कोई उसके पास बैठता नहीं था। तो इट गिव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, उसे लगता था, उसे भी लोगों के बारे में सोचना, बुरा बुरा सोचना, गलत गलत सोचने में बहुत मज़ा आता था। It became his cherished pastime to think of people who were caught in the danger snare. There were others who were still circling around the bait. और उसे ये उसका फेवरेट टाइम पास था कि ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो इसमें फंसे हुए हैं, डेंजर स्नेयर में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं इसमें। और कुछ ऐसे भी हैं जो उस बेट के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, मतलब लेना तो चाहते हैं, थोड़ा डर रहे हैं, उस पिंजरे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। जेनरस ओल्ड क्रॉफ्टर, तो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एंड ही वॉज सेलिंग रेड ट्रैप्स हियर एंड देयर, ही वॉज नॉट हैविंग एनी हाउस ऑल्सो। तो वन डे व्हेन ही वॉज सेलिंग हिज रेड ट्रैप, ही met with a generous old crofter. Now we will see what happened in the story.
One dark evening, he was wandering along the road. He knocked on the door of a little grey cottage. An old man greeted him. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. He served him supper. The peddler played majlis with his host until bedtime. तो एक दिन की बात है कि he was wandering along the road. He was not having anything, so he was just wandering on the road and he knocked on the door of a little grey cottage. उसने knock किया and an old man greeted him, and it was happened with that it was almost happened with him first time that somebody had greeted him, because the old crafter was also alone. He was not having family, so he was very happy to get someone to talk with him. He was very fed up by his loneliness, so he wants any person with whom he can talk. And whenever and as he saw पेडलर देयर, ही बिकेम हैप्पी कि चलो भाई कोई तो आया मुझसे बात करने के, एटलीस्ट मैं आज तो किसी से बात कर सकता हूँ. सो ही सर्व्ड हिम सपर. उसने क्या किया, उसको सपर खिलाया, मतलब डिनर खिलाया एक तरह से. और उसने उसके साथ कार्ड इमेजली से गेम होता है वो भी उसके साथ खेला अपने होस्ट के साथ, जब तक वो बेड टाइम पे. तो और ये जो होस्ट था उसका, ही वॉज अ क्रॉफ्टर एंड ही वॉज वेरी जेनरस, बहुत जेनरस सा क्रॉफ्टर था. तो एंड ही वॉज नथिंग, ही वॉज वंस ही वॉज हैविंग अ रिच, वंस ही वॉज अ वेरी रिच मैन, बहुत रिच मैन कभी हुआ करता था ये. बट अभी उसका गुजारा कैसे चलता था, उसके पास कुछ गायें थी, एक दो गायें थी, और उनका वो मिल्क सेल करके ही उससे गुजारा चलता था. और उसने वो इतना हैप्पी था उसको देख करके कि दैट ही हैज़ गॉट समवन. So he revealed his secret also. And what was the secret? Secret was that कि last month he has got 30 kroners. Kroners means as we are having rupees, so kroners was the currency of that country from where the story belongs to. तो उसने जो 30 kroners थे वो भी अपने उसको दिखा दिए. And he was again kept that money in front of the peddler. अब क्या होता है? The old man went to the window. He took down a leather pouch which hung on a nail in the window frame. He picked out 3 wrinkled 10-kroner bank notes. He held them up before the eyes of his guest. He stuffed them back into the pouch. The next day, both men left the cottage at the same time. But half an hour later, the red trap peddler stood again at the window. He smashed a pane and got hold of the pouch. He took the money and thrust it into his pocket. He hung the leather pouch back in its place. And अब क्या होता है कि जो ओल्ड मैन होता है वो उसे विंडो के पास जाता है. ही टुक डाउन अ लेदर पाउच. वहाँ से उसने एक लेदर का पाउच लिया विच वॉज हैंगिंग ऑन अ नेल इन अ विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम पे टंगा हुआ था. तो ही पिक्ड आउट, ही शोड 3 wrinkled 10-kroner बैंक नोट्स. ने उसमें से क्या निकाल के दिखाया उसको, पेडलर को, जो 3 10-10 क्रॉनर के नोट्स थे, वो रिंकल्ड थे, बहुत गुचड़ मुचड़ करके उसने उसको रखा हुआ था. तो उसने वो दिखाए. ही हेल्ड देम अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. और उसने सब कुछ अपने सीक्रेट भी रिवील कर दिए. ही एंड अगेन ही स्टफ देम बैक इनटू द पाउच. और वापस उसने उसके सामने ही रख करके उनको वापस वहीं पर उसी प्लेस पर हैंग कर दिया. एंड नेक्स्ट डे बोथ मैन लेफ्ट एट द कॉटेज एट द सेम टाइम. क्यों? जो क्राफ्टर था ही वॉन्टेड टू गो अर्ली, क्योंकि उसे जल्दी जाना था. ही वॉन्ट टू हैव द मिल्क ऑफ द काउ. उसको मिल्क निकालना था, काउ का मिल्क लेना था. तो ही वॉज इन अ हरी. एंड when the peddler saw that the host of the house is waken up, then how can he be there? तो वो भी उसके साथ साथ वहाँ से निकल गया. सेम टाइम दे लेफ्ट द कॉटेज. दोनों ने एक साथ घर को छोड़ा. बट आफ्टर हाफ एन आवर द पेडलर वॉज एट द सेम प्लेस नियर द विंडो. लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ, जो आधे घंटे बाद जो पेडलर था वो अगेन वापस उसी प्लेस पे आ गया जहाँ पर विंडो के पास आ गया बाहर से. ही स्मैश्ड अ पेन. उसने
पेन मीन्स जो विंडो पेन शीशा होता है उसको बोलते हैं विंडो पेन। उसने विंडो पेन को तोड़ा एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और वहाँ से पाउच को निकाल लिया। एंड ही टुक द मनी, उसने मनी को लिया एंड कीप इट इन हिज पॉकेट, पॉकेट में रख लिया उसको। एंड अगेन ही hung the leather pouch back on its place, और जहाँ पर भी उसे रखा था वहाँ पर उसने ले जा करके उसको रख दिया। ट्रैप इन द फॉरेस्ट। Now what happened where he went from there? When he took the money, what happened with him? With the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. And as he took out the money from the crofter's house, he was feeling very happy. He was thinking that I'm very smart, I've done this, I've taken that money out. It was not safe to walk on the public highway, but there was a fear in his mind. क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. सो it was not safe to walk on the public highway. He turned off the road into the forest. Now he changed his road. He changed his main highway and went into the deeper forest there. अंदर वो जंगल में चला गया. Late in that day, he lost the way. After that, he forgot the way he lost the way into the jungle. Because the jungle was very dense, the forest was very dense, so he lost his way. It was a big and confusing forest. To him, the world appeared to be a big rat trap. Now he was having a same feeling that whatever I think about the people that they trapped, he was also in the same trap. वो भी अब उसी सेम ट्रैप में फंस चुका था. Now his turn had come. उसकी बारी आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी बेफूल हो गया, पागल बन गया उसका बेट के थ्रू. वो बेट क्या था, यहाँ पर क्या था बेट, वो 10 करोनर्स के नोट थे, वो 30 करोनर रुपीज जो थे उसके 30 करोनर बैंक नोट्स, दैट वाज सेट एज अ बेट फॉर द पेडलर. वो भी एक उसकी बेट की तरह रखे गए थे. एंड नाउ ही हैड ऑल्सो कॉट इन द ट्रैप. वो भी ट्रैप में फंस चुका था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. ऑलरेडी जो है डार्कनेस वॉज ओवर देयर. नाउ इट वॉज अ नाइट, अबाउट टू नाइट. द सन हैज़ सेट. अब सन जा चुका था, अंधेरा होने वाला था ऑलमोस्ट. फाइनली व्हेन ही सॉ नो वे आउट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. एंड when he tired up, he was not getting any way to come outside of the jungle, so he sank down. लेट गया वहाँ पर, बिल्कुल जैसे डूब जाते हैं, थके हारे थक करके चूर हो जाते हैं, वो भी सेम कंडीशन उसके साथ हुई. एंड ही वॉज टायर्ड टू डेथ. मतलब इतना टायर्ड हो चुका था, टायर्ड टू डेथ. इट वॉज लाइक अ समली, टायर्ड टू डेथ, मतलब बिल्कुल मरने हाल हो चुका था वो. But soon he had the sound of hammer strokes coming from an iron mill. लेकिन जल्दी ही उसे क्या सुनाई दिया, साउंड ऑफ हैमर. हैमर का साउंड है जब हथौड़े मारते हैं बहुत तेज तेज, दैट इज कॉल्ड साउंड ऑफ हैमर. तो वो उसको हथौड़े की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज तेज कोई. एंड इट वॉज लाइक दैट देयर वॉज अ आयरन मिल नियर बाय. लगा कि जैसे कोई आयरन मिल हो आसपास. ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड समहाउ ही मैनेज हिज स्ट्रेंथ, समहाउ ही कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ. और अपने आप को उसने साहस को इकट्ठा किया, खड़ा हुआ किसी तरह. एंड ड्रैंक हिमसेल्फ टुवर्ड्स, और धीरे धीरे वहाँ पर उस तरफ आवाज़ की तरफ वो बढ़ता चला गया. एट रैम्सो आयरन वर्क्स. और ये जो एंड दैट साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल. एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मिल? रैम्सो आयरन वर्क्स. द रैम्सो आयरन वर्क्स वॉज अ बिग प्लांट. ये जो रैम्सो आयरन वर्क है ये बहुत बड़ा सा प्लांट था, बहुत बड़ी सी आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री थी एक तरह की. द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर्स सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस. जितने भी जो मास्टर स्मिथ थे, मतलब जो आप ये कह सकते जो हथौड़ा बजाने वाले थे, या जो जितने भी कोयला तोड़ने वाले, जितने भी लोहा तोड़ने वाले आप मास्टर स्मिथ थे, और जो उनके हेल्पर्स थे, वो सब बैठे थे डार्क फोर्ज में, फर्नेस के पास. मैनी साउंड्स वर हर्ड इन द फॉर्ज. बहुत सारे साउंड्स आ रहे थे फॉर्ज में. ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द पेडलर स्टैंडिंग क्लोज टू द फर्नेस.
और इतना सारा आवाज़ आ रहा था, कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी, कहीं से आग की मतलब कहीं से साउंड आ रहा था, कहीं पे आग चल रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आ रहे थे। उन साउंड्स के बीच में जो ब्लैक स्मिथ था, ही डिड नॉट नोटिस दैट समवन वाज देयर, कि कोई वहाँ पर आया है, पेडलर वहाँ पे आया है। यूजुअली पुअर वेगाबॉन्ड्स केम देयर टू वार्म देमसेल्फ इन द विंटर। और जनरली कौन लोग आया करते हैं वहाँ पर? जो घूमने वाले आवारा, जिनके पास घर नहीं होता, जो लोग घूमते रहते हैं, गरीब, जिनके पास घर नहीं होता, गरीब होते हैं, तो या फिर आवारा टाइप जिसे आप कह सकते हो, तो वो लोग वहाँ पर आया करते थे विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द ब्लैक स्मिथ नोडेड इन अप्रूवल। उसने परमिशन के लिए पूछा कि कैन आई स्टे देयर एट नाइट। सो जो ब्लैक स्मिथ था, ही नॉडेड, नॉडेड मतलब गर्दन हिला के उसने, विदाउट सेइंग एनीथिंग ही नॉडेड, उसने बिना कुछ आवाज़ के गर्दन हिलाई। और गर्दन किस चीज़ में हिलाई? अप्रूवल में हिलाई, मतलब इन एनी वे ही हैज़ गिवन परमिशन टू हिम। मीटिंग द आयरन मास्टर, मीटिंग विद द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर केम इन टू द फोर्ज ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था, तो ही वॉज ऑन हिज नाइट राउंड, वो नाइट राउंड पे था। जैसे डॉक्टर्स आते हैं इंस्पेक्शन पे, राउंड पे, इफ़ दे आर हैविंग, द पेशेंट्स आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और एनी दे नीडेड एनी मेडिसिन, सो और तो इस तरह से सेम वे में जो आयरन मास्टर था, वो वहाँ पर मतलब जो है एक तरह से देखने के लिए आया था कि काम हो रहा है, नहीं लोग बैठे तो नहीं है, काम तो कर रहे हैं ना। तो सब एक नाइट राउंड लेने आया था, नाइट में एक राउंड लगाया करता था, तो वो उसी तरह से आया था वहाँ पर। ही सॉ द पेडलर इन द डार्क एंड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब उसने पेडलर को अंधेरे में देखा एंड ही मिस्टेकन हिम, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम लाइक हिज इन ओल्ड एक्वेंटेंस। उसको लगा कि शायद मेरा कोई पुराना जानने वाला है, और उसने बाय मिस्टेक उसको वो समझ लिया। द पेडलर डिड नॉट नो हिज नेम। पेडलर को उसका नाम नहीं पता था। नॉट डिड ही एवर मीट द मैन, और ना ही वो कभी उससे मिला था। ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल विद हिम, and he told the iron master that thing had gone downhill with him, means something was happened to him, and due to that he was in a bad condition। कुछ ऐसा हो गया है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसके कारण उसकी ये कंडीशन आ गई, पेडलर बनना पड़ा उसको। द मैन रिप्लाइड दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब वो जो मैन होता है, ही रिप्लाइड, वो उसका क्या बोलता है कि यू शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज मिस्टेकिंग हिम लाइक दैट पर्सन, लाइक दैट आर्मी ऑफिशियल। ही इन्वाइटेड द पेडलर टू कम होम विद हिम। अब उसने इन्वाइट किया पेडलर को आने के लिए। द वेगाबॉन्ड डिड नॉट वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विद हिम टू द मैनर हाउस। अब वो उसके साथ उसके घर जाना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन। और वो नहीं चाहता था कि जानबूझ के मैं एक शेर की गुफा में मतलब मरने के लिए चले जाऊं, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसको, जो वो सोच रहा है मुझको, और अगर मैं जाऊँगा वहाँ पर ये मुझे बाद में पहचान लेगा तो मुझे जो है प्रॉब्लम होगी। तो ही डजंट वांट टू गो विद हिम। द आयरन मास्टर वांटेड हिम टू गिव देम कंपनी एट द क्रिसमस फर्स्ट ऑफ द पेडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम एट क्रिसमस। अब जो आयरन मास्टर था, ही वांटेड दैट पर्सन, जो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस है, ही शुड गिव हिम कंपनी ऑन द क्रिसमस, की ये कंपनी, ये उसे क्रिसमस में उसके साथ उन्हें कंपनी दे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द पेडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम। लेकिन जो पहले क्या किया, पेडलर ने उसको जाने से वहाँ पर मना कर दिया कि नहीं नहीं, आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा उनके साथ। एडला विल्मनसन परसुएड द लेटर पेडलर। अब वो उसको मनाने आती। एडला विल्मनसन जो है, हु इज़ द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, शी परसुएड्स द पेडलर समहाउ। वो किसी तरह उसको मनाने आती है। द आयरन मास्टर डॉटर एडला विल्मनसन केम टू द फॉर्ज। शी थॉट दैट द मैन वॉज फ्राइटेंड। शी लुक्ड एट हिम compassionately. She requested him to stay with them over Christmas Eve. He followed the lady
He thought that he had fallen in the trap and would never get out of it. जो आयरन मास्टर की जो डॉटर है एडला विल्मनसन, शी केम टू द फॉर्ज एंड शी थॉट दैट द मैन वॉज फ्राइटेंड and she was getting shy because his condition was not good, and she looked at him compassionately, बहुत दया से भाव से देखती है उसकी तरफ, and requested him to stay with them over Christmas Eve, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्रिसमस की ईव है तो आप क्रिसमस की ईव पर हमारे साथ रहें. ही फॉलोड द लेडी, वो भी बेचारा जो कि उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि बहुत शी मेड अ रिक्वेस्ट टू हिम, तो ही फॉलोड द लेडी. ही थॉट दैट ही हैड फॉलन इन द ट्रैप, उसको लगता है कि अब मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ एंड वुड नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. द वैलेट हैड बेटेड हिम, द वैलेट हैड बेथ हिम, बाथड हिम. अब नेक्स्ट डे जो क्रिसमस ईव थी, जो वैलेट मतलब जो सर्वेंट था उसको नहलाता है, कट इज हेयर एंड शेव्ड हिम, उसकी शेव करता है. पैडलर स्टूड देयर इन अ गुड सूट दैट बिलोंग टू द आयरन मास्टर. जो पैडलर है वहाँ पर एक उस सूट में, एक अच्छा सा सूट विच वॉज बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का ही था, उस गुड सूट में एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पर खड़ा होता है. नाउ द पैडलर स्टूड बिफोर द आयरन मास्टर इन ब्रॉड डे लाइट. अब जो पैडलर होता है, he was standing in front of the iron master in broad daylight because he had mistaken him in the night, but now it was a time of morning and everything was clear as crystal. सब कुछ साफ साफ था, नजर आ रहा था, and it was impossible to mistake him for an old acquaintance. और अब ये उसको जो है मिस्टेकन करना बहुत मुश्किल, मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल था. अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था. बट ही टोल्ड द ही थंडर्ड एट हिम, वो बहुत चिल्लाया उसके ऊपर. द पेडलर सॉ एट वंस दैट ही वॉज एक्सपोज. अब पेडलर को भी लगा कि ही वॉज एक्सपोज, उसका भेद खुल चुका है. बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, वो उसको बताता है कि मेरा फॉल्ट नहीं था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसीव एनी बडी, he doesn't want to cheat anybody. He had never pretended to be anything than a poor peddler. और उसने कहा मैंने कभी कुछ दिखावा किया ही नहीं, जैसा मैं पुअर गरीब पेडलर हूँ मैं उसी तरह का था. He had only begged to be allowed in the forge. मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि I can stay in the forge or not. He was ready. अब वो तैयार भी था कि चलो मैं if everything is clear then I can put my old rags, मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, and go away. First the iron master threatened to call the sheriff. Sheriff means एक officer, police officer. But then asked him to go at once. Iron master ने उसको कहा कि मैं पुलिस बुलाऊंगा and you will be handed over to the police. But then asked him to go at once. लेकिन उसने उसके बाद क्या कहा कि ठीक है, उसको धमकी देकर उसने उसको छोड़ दिया. विल्मनसन मेड हिम टू स्टे. अब विल्मनसन ने उसको कैसे रोका, जो विल्मनसन फैमिली थी उन्होंने उसको कैसे रोका. द आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पैडलर्स टू स्टे विद दैम दैट डे. अब जो आयरन मास्टर की बेटी थी, शी वांटेड दैट पैडलर शुड बी विद देम ऑन द क्रिसमस ईव बिकॉज इट वॉज अ डे ऑफ हैप्पीनेस एंड ही शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू बी हैप्पी. एंड दे हैव मेड प्रॉमिस्ड ऑल्सो विद हिम. उन्होंने भी उनको प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें खुश रखेंगे और तुम्हें हमारे साथ ईव पे रहना है. देयर वाज नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही वाज वेलकम. और उसे पता था कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसका वेलकम हो. एवरीवन शोड हिम द डोर. शी वांटेड टू हैव हिम स्टे एंड एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम. अब हर कोई उसको दरवाज़ा दिखा देता था, इसलिए वो चाहती थी कि वो उसके साथ रहे और एक दिन एटलीस्ट पीसफुली अपनी ज़िंदगी का बताया. शी वॉज अगेंस्ट चेजिंग अवे अ मैन होम दे हैड प्रॉमिस क्रिसमस चीयर. वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे कि हमने प्रॉमिस किया है कि वी वुड मेक हिम हैप्पी, और अब हम उसको ऐसे बाहर निकाल दें. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ही डजंट से अ सिंगल वर्ड in against or in favor. In the evening the Christmas tree was lighted. He ate the Christmas fish and porridge. अब इवनिंग में क्रिसमस ट्री जो था उसको लाइट में उस पर लाइटिंग बहुत अच्छी सुंदर सुंदर उसको सजाया गया. ही एट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. उसने वहाँ पर क्रिसमस फिश खाई, पॉरेज खाया.
they heard a sensational news at the church. Who heard a sensational news at the church? Iron Master and his daughter heard a sensational news. उन्होंने चर्च में एक सेंसेशनल न्यूज़ सुनी, सनसनी वाली बात सुनी. क्या सुनी? नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट फॉर द अर्ली क्रिसमस सर्विस. जो नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और जो उसकी डॉटर थे, दे वेंट टू द चर्च फॉर अर्ली क्रिसमस सर्विस. द गेस्ट वॉज स्टिल asleep. वो गेस्ट अभी भी सोया हुआ था एंड दे डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च. वो बाहर निकले 10 बजे के लगभग. द यंग गर्ल सैट डिजेक्टेडली. जो यंग गर्ल थी, शी वॉज सिटिंग अनहैप्पीली. डिजेक्टेडली मतलब अनहैप्पीली. एट चर्च शी हैड हर्ड अ सेंसेशनल न्यूज़. वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन ड्रॉप्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रेप्स. उसने क्या न्यूज़ सुनी कि जो वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर जो था, वो उसे किसने लूट लिया था? ही वॉज रॉब्ड बाय अ मैन हु वॉज सेलिंग रेड ट्रैप्स. द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट whether the stranger was still there. अब उसने उससे पूछा सर्वेंट से कि जो स्ट्रेंजर था वो अभी भी वहाँ है. He had heard the church that the man was a thief. The valet answered that the peddler had gone but had not taken anything at all. वो चला गया but he had not taken anything from there. On the contrary, he had left behind a little package for Miss Williamson. और इसके अपोजिट उसने एक पैकेज छोड़ा है. किसके लिए? मिस विल्मनसन के लिए, जो उसकी बेटी है उसके लिए. अब उसमें क्या था? वो क्रिसमस प्रेजेंट था. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप इन इट and it lay 3 10-kroner banknotes. In the red trap lay also a letter written for Miss Williamson. He thanked her for being so nice to him as if he were a captain. He did not want her to be troubled by a thief at Christmas. She was requested to give back the money to the old crofter. On the roadside, he had the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The red trap was a Christmas present from a rat who would have been caught if he had not been raised to a captain. तो जो young girl थी, she opened the package and as she opened the package, she was so happy. She cried with the happiness. क्यों? Because she found a small rat trap in that, and in that red trap there was a 3 10-kroner banknote, and they were the same note which has been dropped by the crofter. And उसमें एक लेटर भी था. and he thanked मिस विल्मनसन. उसने थैंक किया था मिस विल्मनसन को दैट शी वॉज सो नाइस टू हर एज ही वर अ कैप्टन. उसने इतना अच्छे से उसके भी साथ बिहेव किया जैसे वो कैप्टन हो, और वो अब उसको ट्रबल नहीं करना चाहता था क्रिसमस पर बता करके कि आई एम अ थीफ. एंड उसने ही मेड अ रिक्वेस्ट ऑल्सो दैट प्लीज़ रिटर्न दिस मनी टू द क्रॉफ्टर. एंड ये जो थैला रखा हुआ था, जो पाउच था, उसमें बताया कि जो पाउच है जो विंडो पे टंग रहा है, दैट पाउच इज़ लाइक अ बेट फॉर द वॉन्डरर्स. जो लोग घूमते हैं ऐसे मेरी तरह आवारा, जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो इट वॉज़ लाइक अ बेट फॉर दैम. और ये उनके लिए बेट की तरह लालच की तरह काम करता है. एंड दिस प्रेजेंट वॉज फ्रॉम अ रैट. ये उस रैट की तरफ से, एक चूहे की तरफ से है जो क्रिसमस प्रेजेंट है, रैट ट्रैप. और ये वो रैट ट्रैप है जिसमें वो फंस चुका होता अगर उसे कैप्टन की तरह उन्होंने उसे ट्रीट ना किया होता. सो दिस वॉज द स्टोरी. एंड in this story you will see you have seen that by the good behavior of the Miss Williamson, he had changed his behavior, he had changed his habit, he has returned the money. और कैसे उसने अपने आप को, जो उसके अंदर एक ह्यूमन, जो हमारे अंदर एक ह्यूमन बहुत अच्छी एक हमारे अंदर ह्यूमन गुडनेस होती है, बेसिक गुडनेस जो हमारे अंदर होती है, वो कैसे जगी, वो अवेकन हुई उसके अच्छे बिहेवियर से, मिस विल्मनसन के अच्छे बिहेवियर से. सो थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.